that is the in continuation with the topic which we have studied yesterday. ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ continuation ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ topic start ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। We have studied capacitance and few of the numericals related to capacitance ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਚ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਹਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਹਾਰਦਿਕ। ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 1 2 3 4 ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, 15-16 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਰਦਿਕ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੇ, ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 1 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। हाँ की कहना चाहना तो हार्दिक? वैसे कुछ नहीं, बस वो डाउट्स ही सीखे बस। ठीक है बेटा, मैं आज करा लेना, कुछ क्वेश्चन आज कराऊंगा, कुछ कल कराऊंगा, थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ਜਿਹੜੇ ਵੀ डाउट्स ਹੈਗੇ ਆ, ठीक है। ओके ओके बेटा, चलो मैं ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ that you have these 4 capacitors. You can easily see कि 2 ऊपर वाले कैपेसिटर ते 2 नीचे वाले कैपेसिटर सीरीज च हैं। 12 वोल्ट दी बैटरी लाई हुई है। ए वाला पोर्शन ते ए वाला पोर्शन आपस में पैरेलल है। You can easily see, ठीक है जी। जेड़ा ए कैपेसिटर है दिस इज ऑफ 8 माइक्रोफैरड, दिस कैपेसिटर इज ऑफ 4 माइक्रोफैरड, दिस कैपेसिटर इज ऑफ 3 माइक्रोफैरड एंड दिस कैपेसिटर इज ऑफ 6 माइक्रोफैरड। इस तरह नाले कैपेसिटर अपने चारों कैपेसिटर दिते हुए हैं। क्वेश्चन इज there are points here this point is A point and this point is B point. Question is find potential difference between A and B. Find potential difference between A and B. यह क्वेश्चन है बेटा साडा। चारू, is it चारू? यामिनी शर्मा जी चारू हैं आप? यस सर। ओके ओके यामिनी, हम कैपेसिटेंस कर रहे हैं बेटा, जितना तेरे को समझ आता है तो देख ले, फिर बाद में बात करते हैं हम, ठीक है। ओके सर। यस एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, अब ये 2 मिनट आप ले लो, इस क्वेश्चन को कर लो। 2 मिनट हैं आपके पास। काइंडली सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करें। ये हमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है।
ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। दिस इज द कॉम्बिनेशन गिवन टू यू। यस, 1 मिनट फॉर ऑल एवरीवन। आप इसको सॉल्व करें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी, हार्दिक बेटा, हाँ जी सर। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? अब चारू बेटा, आप इसको अपना बंद कर लो, आवाज को म्यूट कर लो, अपनी वॉइस को। हाँ जी हार्दिक जी, कैसे आप अप्रोच पहले करोगे सर, बेटा इसको? पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल के टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा। फिर उस चार्ज को मतलब पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है तो दोनों में चार्ज डालेंगे, फिर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस तो दी हुई है, इंडिविजुअल वोल्टेज फाइंड आउट कर। इंडिविजुअल चार्ज फाइंड कर लेंगे सर, फिर उससे अच्छा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल पोटेंशियल चार्ज भी आ आ गया, जाएगा सर। इंडिविजुअल पोटेंशियल आएगा ना, पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट? वो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इसका इसके ऊपर आ जाएगा। इंडिविजुअल पॉइंट पे कैसे करोगे? ये क्वेश्चन जो है बेटा, हार्दिक अपनी वॉइस बंद कर लो। ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, आप अभी मेरे को देखेंगे, क्योंकि ये टेक्निक है इसको कराने की। ये क्वेश्चन मतलब आप जो सोच रहे हैं, आप मेरे कहे पे बताई हुई बात ही सोच रहे हैं सारे, पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। इसको करने का एक तरीका है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो तरीका क्या है? देखो, पटियाले से राजपुरा जाने के बहुत सारे मेथड हैं। सीधा भी जा सकते हो आप, टेढ़े मेढ़े भी जा सकते हो। तो हम ये सीधा जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे को आपको कुछ टेक्निक सिखानी है, इसलिए आपको मेरी बात को सुनना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ 12 वोल्ट दिया हुआ है। 12 वोल्ट का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। 12 वोल्ट के कई मतलब हो सकते हैं। 12 वोल्ट का ये मतलब हो सकता है कि जो ये वाला पॉइंट है और जो ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये वाला पॉइंट 12 वोल्ट पे है, ये वाला पॉइंट 0 वोल्ट पे है। अगर इनमें पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का है इन दो पॉइंट्स में, इसका मतलब एक पॉइंट इधर वाला 12 पे, इधर वाला 0 पे है। आप ये भी समझ सकते हैं, इधर वाला 6 पे है, इधर वाला -6 पे है। इसीलिए कई बार आप ये डंडी को पॉजिटिव बोलते हैं और इस डंडी को नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट का है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 12 जीरो का कॉन्सेप्ट लेके आपके साथ चल रहा हूं। मैं ये मानूंगा कि मेरा ये वाला पॉइंट जो है ये 12 वोल्ट पे है, और मेरा ये वाला पॉइंट जो है वो ये 0 वोल्ट पे है। पहले तो इस बात को आपको अच्छे से मेरी बात को सुन लेना है। ये वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे है? 12 पे। ये वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे है? 0 वोल्ट पे। ये बातें आपने मेरी सुन ली है। अब देखो बेटा, इधर से जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज क्यू चार्ज है। आपको पता है जब वो यहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट पे तो वो डिवाइड होगा दो हिस्सों में। तो ऊपर चार्ज चला गया Q1, नीचे चार्ज चला गया Q2। ये हमें पता है। एक बात हमें और पता है कि जो भी चार्ज इस पे आएगा ना 8 माइक्रोफैरेड पे, वही चार्ज 4 माइक्रोफैरेड पे भी आएगा, क्योंकि दोनों जो कैपेसिटर हैं, बोथ दीज कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। whatever the charge is at 8 microfarad, the same charge will be at 4 microfarad. इस बात को उठा के मैं एक कॉन्सेप्ट बना रहा हूं कि Q1 at 8 microfarad is equal to Q1 at 4 microfarad। मतलब चार्ज 8 माइक्रोफैरेड पे Q1 चार्ज है, वही चार्ज इस पे है, चार्ज सेम है। अब चार्ज को के कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं। हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। हम सबको ये फॉर्मूला पता है। चारू, ये तुम्हें नहीं पता होगा फॉर्मूला, अगर तुमने कैपेसिटेंस थोड़ा थोड़ा पढ़ा है तो तुम्हें शायद पता हो। Q इज इक्वल टू CV होता है। V बेटा कैपेसिटेंस है, C कैपेसिटेंस है, V पोटेंशियल है, Q चार्ज है। Q इज इक्वल टू CV होता है हमारे पास। अब मैं इसके ऊपर Q इज इक्वल टू CV लगाता हूँ। देखो कैसे लगाऊंगा। इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? चार्ज होगा 8 माइक्रो फैरेड के ऊपर चार्ज कितना होगा? चार्ज का फॉर्मूला CV, कैपेसिटेंस है इसकी 8, और पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स? हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पोटेंशियल VA है, यहाँ पोटेंशियल VB है।
ये मैं मान के चल रहा हूं। चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। याद रखो चार्ज हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल, चार्ज की बजाय तुम करंट भी बोल सकते हो। करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये आपने 10th में पढ़ा है। यानी यह 12, ये है VA, ये है 0। 12 VA से ज्यादा बड़ा है, VA 0 से ज्यादा बड़ा है, इसीलिए करंट ऐसे जा रहा है, हाई टू लो, हाई टू लो। समझ आ गई बात? ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस मैं देखना चाहता हूं। एक पॉइंट 12 पे है, दूसरा पॉइंट VA पे है, ये मैंने खुद माना है। पहले लिख दूंगा मैं, लेट VA and VB are potentials. I am not writing potential difference, I am writing potentials at A and B. ये लाइन मैं पहले ही लिख दूंगा इसके नीचे सोल्यूशन में। सो चार्ज एट 8 माइक्रोफैरड हम निकाल रहे हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू CV होता है, C है 8 माइक्रोफैरड और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 माइनस VA इज इक्वल टू, अब इस पे चार्ज निकालते हैं। दोनों पे चार्ज सेम है क्योंकि दोनों सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम होता है। नाउ व्हाट इज चार्ज एट दिस? चार्ज क्या होगा? 4 into potential difference. What is potential difference between these 2 points? It is VA minus 0. आप लोग मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? ये आपको जिन को समझ आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, वो टिक कर दें, जिनको नहीं आया वो क्रॉस कर दें। तो यहाँ पे हम शुरू करते जा रहे हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है? इसको सॉल्व कैसे करोगे? ये कट गया 2 से, तो ये क्या बन गया? 24 माइनस 2 VA इज इक्वल टू VA, ठीक है? ये VA इधर ले जाऊंगा, 24 इज इक्वल टू 3 VA। दिस इंप्लाइज VA इज इक्वल टू 24 बाय 3, 8 या 24, इतने वोल्ट आ गया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। जिन बच्चों को समझ आ गई काइंडली टिक कर दें, जिनको समझ नहीं आई क्रॉस करें। टिक्कें कम आ रही हैं जी, 5 टिक्कें आई हैं अभी, 10 बंदे हो आप। पांच बंदों में टिक्के नहीं आई हैं। दो क्रॉस आए हैं जी, अवनीत का क्रॉस आया है, और ठीक है जी 2 क्रॉस, वेरी गुड। अवनीत दोबारा सुने, हमारा सवाल ये है बेटा कि हमें A और B पे पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। एक पॉइंट ये हमारा सर्किट दिया हुआ है, ये वाले पॉइंट का नाम है A पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है B पॉइंट। A और B पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो मैंने पहले ये मान लिया कि मान लो VA और VB पोटेंशियल्स हैं किन किन पॉइंट्स पे? A और B पॉइंट्स पे। और ये 12 वोल्ट की बैटरी दी हुई है। 12 वोल्ट का क्या मतलब होता है कि ये वाला पॉइंट 12 पे है, ये वाला पॉइंट 0 पे है। 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का ये मतलब है। एक एंड 12 पे है और दूसरा एंड 0 पे है। एक एंड 6 पे है, दूसरा एंड -6 पे है। कई बार मैं ये भी यूज करूंगा, पर यहाँ ये यूज नहीं करना, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आपको कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? 0 इजी है, 0 से आसानी से हो जाता है। अब अवनीत बेटा क्या है, इधर से चार्ज आ रहा है या करंट आ रहा है? वो करंट 2 हिस्सों में जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। अब अवनीत तुझे ये पता है कि 8 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड क्या है? आपस में सीरीज में है। सीरीज में चार्ज सेम होता है, इस पे जितना चार्ज होगा वही इस पे चार्ज होगा। और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी? तो मैंने क्या किया है, चार्ज लिख लिया 8 का और चार्ज लिख लिया 4 का, दोनों के चार्ज सेम है। Q इज इक्वल टू CV होता है, इसके ऊपर सबसे पहले हम चार्ज निकालते हैं। चार्ज का फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू CV। C कितना है इसका? 8। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस पहले इन 2 पॉइंट्स पे निकाल लिया हमने। ये 12 पे है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया VA, तो 12 माइनस VA हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इधर निकालते हैं चार्ज, इस पे चार्ज कैसे निकालेंगे? Q इज इक्वल टू CV। C है 4 और V की वैल्यू कितनी है? ये V की वैल्यू है। पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 पॉइंट्स में कितना है? VA माइनस 0।
ये लिख लिया, यहाँ से बेटा मैंने VA निकाल लिया। हाँ जी, कृपया अगर समझ आ गया तो अपने क्रॉस को टिक में चेंज कर दें। गुरनूर शेरगिल आपकी टिक नहीं आई है। ओके, 9 टिकें आ गई हैं, 9 ही बंदे हैं, 10, अच्छा 10वां तो मैं हो गया, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। ये हार्दिक हमने VA निकाल लिया। सिमिलरली हम VB निकालते हैं बेटा। VB कैसे निकालेंगे? चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरेड। क्योंकि 3 और 6 सीरीज में है, दोनों पे चार्ज सेम होगा। अब 3 माइक्रोफैरेड पे चार्ज निकालो। Q इज इक्वल टू CV होता है, C है 3 और V कितना होगा? 12 माइनस VB। चार्ज एट 6 पे चार्ज कैसे निकालोगे? कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस 0। यहां से VB निकाल लो। VB की वैल्यू कितनी आती है जी? VB की वैल्यू आती है 4 वोल्ट। तो VB आ गया 4 वोल्ट, VA आ गया 8 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकालना है VA माइनस VB, आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट। हाँ जी, सभी बच्चे बताएं सवाल अच्छा लगा? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल लगता है मेरे को। ये सवाल आगे भी आएगा, आपको ध्यान देना है सारे बच्चों ने। सर हाँ जी, सर ये पैरेलल हैं दोनों सर्किट में, तो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है, डिफरेंस कैसे आ गया? पैरेलल में पोटेंशियल सेम का मतलब है बेटा, ये नीचे पोटेंशियल डिफरेंस और ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। कल्ले कल्ले कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल अलग अलग होगा। मतलब इसके ऊपर नेट पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर और नेट पोटेंशियल डिफरेंस नीचे। मतलब ये पॉइंट और इस पॉइंट के नीचे 12 वोल्ट है, ऊपर वाले में कितना है? 12 वोल्ट है। ऊपर और नीचे 12 वोल्ट है। वो 12 डिवाइड कैसे होगा इन दोनों में? 6 डिवाइड होगा दोनों में। वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस के ऊपर। इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट है। इसमें भी 6 और 6 नहीं हो सकता क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट है। समझ ओके आई सर। बात? हाँ जी सर। ऊपर 8 और 4 को इकट्ठा देखेगा अगर तो 12 वोल्ट है बेटा। 6 और 3 को इकट्ठा देखेगा तो भी इसमें 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन अगर कल्ले कल्ले के ऊपर देखेगा उसी के कारण डिफरेंस पॉइंट्स, इसीलिए यहाँ डिफरेंस आ गया पॉइंट का, क्योंकि कैपेसिटेंस ने अकॉर्डिंगली कैपेसिटेंस ने अलग अलग पोटेंशियल बना दिए सबके ऊपर। नेट पोटेंशियल 12 ऊपर है 12 नीचे है। ये वैसे हार्दिक जो तू कह रहा था उससे भी निकल जाएगा, पर वो कहानी लंबी हो जाएगी बेटा। ये तू फटाफट ठक ठक मारेगा उठा के, इसको आगे भी यूज कर ठीक है सकता है सर। इसको। ठीक हाँ है। जी प्यारे बच्चों, अब अगली बात सुनो ध्यान से। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है। अब हार्दिक देख तेरे को क्वेश्चन को प्रॉब्लम नंबर 24 है बेटा। एक मैं भेज देता हूँ, 1 मिनट में दिखाता हूँ प्रॉब्लम नंबर 24। मैंने कल देखी, 1 मिनट। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनके। पहला तो है 14 नंबर वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपने करना है आज। ये मैं इसके जैसा मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया भी था, 14 नंबर वाले का स्क्रीनशॉट ले लो जी। हार्दिक अब ये वाला क्वेश्चन देख बेटा, ये वाला ये यहाँ है ही नहीं क्वेश्चन। हाँ जी ये वाला क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन, 18th फाइंड द 18th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे वाला क्वेश्चन का ले लो, फिर ऊपर डायग्राम का ले लो। आई होप ले लिया हो सभी बच्चों ने। हाँ देख हार्दिक, ये 24th क्वेश्चन देखो जी। सभी बच्चे 24th क्वेश्चन पे ध्यान दें। इस क्वेश्चन पे हार्दिक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आज का जो क्वेश्चन हमने किया है उसी के ऊपर बेस्ड है। इसको सॉल्व करें सब बच्चे। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये।
अभी सब बच्चे आ जाएं 23 क्वेश्चन पे। 23, हाँ जी 23 क्वेश्चन ये मैं कराने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें चक्कर सा पड़ जाता है, बच्चे सभी देख रहे हैं। डायग्राम आप अपनी कॉपी पे बना लें, मैं भी बना रहा हूँ। आई होप सबने बना लिया हो। हाँ जी, क्वेश्चन देखें जी, ये क्वेश्चन क्या है, सभी बच्चों का ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये कि हमारे पास इस तरह से देयर इज अ कैपेसिटर, 4 तरह के कैपेसिटर लगे हुए हैं सारे, ठीक है। 2 कैपेसिटर यहाँ है, 2 सेल हैं ये लगे हुए, देखो। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, देखो सब बच्चे ध्यान दें। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या कर रहा हूँ नीचे, ये देखो हार्दिक, ये मैंने नीचे आपको एक बैटरी बनाई है। बैटरी देख सकते हैं आप, नीचे एक बैटरी बनी हुई है। इसमें कुछ सेल्स ऐसे हैं जो उल्टे लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 सेल तो ऐसे लगे हैं, और ये 2 सेल इन सभी चारों के उल्टे लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। हाँ जी हार्दिक जी, एक सवाल है आपके लिए, सवाल सुने। है हार्दिक? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। हाँ, सवाल ये है हार्दिक कि अगर आपके पास मान लो n सेल्स हैं, ठीक है, उनको आपने ऐसे सीरीज में लगाया हुआ है, उनमें से m उल्टे लगे हैं, ठीक है। तो जो इफेक्टिव सेल्स काम कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं? n माइनस m। n माइनस एम। अब इधर देख, यहाँ कितने सेल लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 सेल लगे हैं, इनमें से 2 उल्टे लगे हैं। ये 2 मान लो 2 2 वोल्ट के हैं सारे, तो 2 सेल कट गए, 2 से 2 और उड़ा दिए अपने साथ। अच्छा। तो अगर ये कितने सेल हैं, 6 सेल थे, उनमें से 2 उल्टे लगे हैं, 2 अपने साथ 2 और ले लेंगे। यही होता है गंदी, जो गंदा बैड कंपनी में बच्चा जाता है ना, वो जो गंदा बच्चा होता है ना, एक वो अपने साथ 1 या 2, एक तो गंदा बच्चा साथ ले ही जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बैड कंपनी से दूर रहो, क्योंकि बैड कंपनी डबलट कर देती है। देखो, यानी कि जो मैंने आपसे पूछा, एन सेल थे, एम उल्टे लगे हैं, एन माइनस 2m सेल खत्म हो जाएंगे, रह जाएंगे, मतलब 2m उड़ा देगा वो सेल। देखो 2 सेल उल्टे लगे हैं, 2 उल्टे लगेगा मतलब नेगेटिव के आगे नेगेटिव। सेल सीधे लगने का क्या मतलब होता है, ये है सेल सीधे लगने का मतलब, सब सेल एक दूसरे को एड कर रहे हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अगर जुड़ते हैं तो ये सीरीज में लग गए चारों सेल। अगर एक सेल 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट का है तो टोटल सेल 8 वोल्ट के हो जाएंगे। देख रहे हो आप, ये जो इसको बोलते हैं बैटरी, ये बैटरी बन गई आपकी। अगर एक से ज्यादा सेल जोड़ते हो आप तो जो भी कॉम्बिनेशन बनता है उसको बैटरी बोलते हैं। तो ये बैटरी बन गई आपकी, 8 वोल्ट की बैटरी है आपकी। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपके 2 सेल उल्टे लगे हैं इस कॉम्बिनेशन में, तो 2 और ले जाएंगे। हार्दिक समझ आई ये बात? जसलीन, हार्दिक, गुरनूर, अवनीत, कृपया टिक लगाएं जिनको समझ आ गया है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। 5 टिके, 6 टिके, 7। प्रभनूर लेट आया, प्रभनूर थोड़ा सा,
ठीक है, ओके फाइन। अब आप इस पे आ जाओ, इस पे डायग्राम पे आ जाओ। अगर आप ध्यान से देखेंगे 12 वोल्ट का जो सेल लगी है और नीचे 24 वोल्ट का सेल लगा है, देख रहे हो आप? नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का ये इस तरह से लगा हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव के सामने नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लगा हुआ है। एक 24 वोल्ट का, एक 12 वोल्ट का है। तो बताओ नेट सेल कितना रह गया? ये तो नॉर्मली माइनस हो जाएंगे एक दूसरे से, तो नेट कितने वोल्ट का सेल बन गया? 12 वोल्ट का सेल बन गया। यानी ये जो डायग्राम है आपकी, इस डायग्राम में आपके पास एक सेल लगा हुआ है। कितने वोल्ट का सेल लगा हुआ है? 12 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। और उसकी पोलैरिटी इसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो बड़ा सेल होता है उसके अकॉर्डिंगली उसकी पोलैरिटी बनेगी। यानी ये डायग्राम मैं अब दोबारा बना रहा हूं, ध्यान दीजिए। हमारे पास एक 2 माइक्रोफैरेड और एक 4 माइक्रोफैरेड के 2 कैपेसिटर हैं और नीचे एक सेल लगा हुआ है 12 वोल्ट का। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये क्या आप सब मेरी बात पे सहमत हैं? ये दोनों जो दोनों कैपेसिटर हैं ये बेसिकली सीरीज में हैं। क्या है ये? सीरीज में। ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऊपर नीचे सेल लगा दिया ताकि आपको ऐसे लगे कि ये क्या है, पैरेलल में। सर हाँ जी, सर वो जो आपने ये बताया n-2m, ये सिर्फ तभी काम हाँ जी। करेगा जब कंसेक्यूटिवली हो दोनों उल्टे सेल्स। ना 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 ना, आगे पीछे, आगे यहाँ लगा हो, यहाँ लगा हो, उल्टा लगा तो काट देगा वो। फिर तो सर 2 से ज्यादा कटेंगे ना अगर कैसे कंसेक्यूटिवली कैसे ना कैसे हो। जैसे अगर कैसे कैसे ऑल्टरनेट लगाए हम फिर तो 3 जाएंगे। कैसे जाएगी ना? ऐसे नहीं है, गलत समझ रहे हो। इसका मतलब ये नहीं, मान ले ये लगा दिया और फिर ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे ऐसे लग गया सपोज, है ना? हाँ जी सर। तो ये जो एक है ना, एक ये अपने साथ एक लेके जाएगा, ये नहीं कि ये भी ले जाएगा ये साथ। ये जो जाना है ठीक ये है सर। इसके कारण जाएगा। हाँ, समझ गया? हाँ जी एक सर। सेल अपने बराबर वाले को लेके जाएगा साथ। अब ये सवाल क्या है? सवाल सुन लो। सवाल ये था कि हमारे पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आई थिंक ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है हमें, ए और बी के बीच में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है ए और बी के बीच में, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। ये ए है, ये बी है, मतलब इस कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल पता करना है। कैसे करोगे पोटेंशियल पता? इस कैपेसिटर के ऊपर सबसे पहले टोटल चार्ज निकालो। चलो क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ये है 4 माइक्रोफैरेड, ये है 2 माइक्रोफैरेड, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होगा? 2 कैपेसिटर और नीचे एक वोल्टेज। क्योंकि ये दोनों सेल एक दूसरे को एड नहीं कर रहे, एक दूसरे के अगेंस्ट लगे हुए हैं, तो 24 में से 12 चला जाएगा, यहाँ 12 वोल्ट बच जाएगा। और बेटा ध्यान दो, ये जो पोलैरिटी है ये वाली पोलैरिटी रहेगी, मतलब इधर डंडी लंबी चाहिए और ये इस तरह से पोलैरिटी रहेगी, ये छोटी है बड़ी, याद रखना ये। और ये है तुम्हारे पास 2 माइक्रोफैरेड का और ये है 4 माइक्रोफैरेड का। सबसे पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालो जी। हाँ जी, फटाफट निकालो टोटल कैपेसिटेंस। 2 × 4 / 2 + 4 कितना आ गया जी? 8/6, 4/3। सी की वैल्यू आ गई 4/3 माइक्रोफैरेड। ये टोटल कैपेसिटी आ गई। अब टोटल चार्ज Q = CV। Q टोटल कैपेसिटेंस कितनी है? 4/3 × 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज। वोल्टेज कितनी है जी? 12। 4 से कट जाएगा, 4 × 4 = 16,
16 into 10 raised to power -6 कूलम। अब यही चार्ज दोनों में से पास करके जाएगा, इसमें से भी यही जाएगा, सेम इसमें से भी जाएगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज पता कैसे करेंगे? वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड, फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। चार्ज इसमें से कितना पास कर रहा है? चार्ज पास कर रहा है 16 इंटू 10 raised to power -6 इंटू कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसकी कितनी है? इक्वल टू है, कैपेसिटेंस इसकी है 2 इंटू 10 raised to power -6 इंटू वोल्टेज। तो ये -6 से -6 कट जाएगा, 2 से ये कट के हो जाएगा 8 वोल्ट आ गया जी वोल्टेज। अगर 12 में से 8 वोल्ट इसके क्रॉस आ रहा है तो 4 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा, क्योंकि 8 और 4 12 है, टोटल 12 वोल्ट है। हाँ जी, सवाल को ध्यान से देख लें, क्वेश्चन क्या है, अच्छे से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। मेरी टेक्निक को याद रखें जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले सर्किट में टोटल कैपेसिटेंस निकाल लें, फिर सर्किट में टोटल चार्ज निकाल लें, उसके बाद अगर कहीं वोल्टेज पूछी हो तो वोल्टेज निकालने का तरीका आपके सामने है, चार्ज निकालने का या दूसरे में वोल्टेज निकालने का तरीका ये है जी। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। एक ही टेक्निक रखोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने जा रहा हूं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना सभी बच्चों ने। राइट डाउन एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, energy stored in a capacitor and concept of energy density। energy stored in a capacitor and concept of energy density। हाँ जी प्यारे बच्चों, ध्यान दो। आपको ध्यान देने से पहले दोबारा से लिंक बनाना पड़ेगा मेरे साथ। मैं आपको दोबारा इनविटेशन सेंड कर रहा हूँ, प्लीज कम अगेन।